So now, today I'm going to discuss about how to automate your accounting using Zoho Books. So before starting, I will just quickly go through with my profile. I'll not take much time. I am a qualified chartered accountant and Zoho finance partner, and I'm using Zoho Books from last 5 years in my company, as well as now we are implementing Zoho Books and all other Zoho apps for our clients' organization. I'm passionate about simplifying accounting processes and with automation and helping professionals and businesses achieve efficiency and growth through technology. So before starting, I would like to tell you one initiative. Maybe you are aware about that, or maybe you are not aware. Our institute, that is ICAI, have committee for member in practice, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है दैट 5 apps like Zoho Books, Zoho Practice, Zoho Expense, Zoho Payroll and Zoho Inventory. These 5 apps are absolutely free for all our chartered accountant members for 3 years. So I just would like to know क्या आप इसके बारे में अवेयर हैं कि ये हमारे लिए एप्लीकेशन एकदम फ्री हैं, Zoho Books, Zoho Practice, Zoho Expense, Zoho Payroll and Zoho Inventory. Are you aware about this, or you want me कि मैं आपको बताऊं कि कैसे इसको हम एक्सेस कर सकते हैं फ्री में? Yes, okay. So for that, what we need to do, we just have to go to ICAI website. मैं एक बार Google open करूंगा. Just I'll open a Google. And here I will just write ICAI Zoho Books. So now you can see first URL, Zoho Book Software, an initiative of CMP benefit. आप इस पर क्लिक करेंगे. Once you click on this, you can see Zoho Accounting Software, an initiative of Committee for Member in Practice. और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, you can see these 5 apps. I'll tell you कि 5 apps हैं क्या और इसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, and how we can grow our practice not only in India but even in US, Canada and all other countries, because we are using Tele, we are using Busy from last 20 years or maybe 30 years, but now today era is all about cloud accounting. जो भी अब नई चीज़ें हैं वो सब कुछ क्लाउड अकाउंटिंग पर हैं. हम हर चीज़ चाहते हैं कि हम अपने फ़ोन पर देखें. I can access my balance sheet from phone, from mobile app. I can access my client's balance sheet on phone, or maybe on iPad, or maybe on my Apple Watch. So all these things can be possible when we use cloud-based accounting solution. And best benefit of cloud-based accounting solution मैं कह सकता हूँ, we have all seen COVID time. कोविड टाइम में जब हमारे पास किसी भी चीज़ का एक्सेस नहीं था, हमारे ऑफिस के अंदर हमारे सर्वर्स थे, टैली का एक्सेस नहीं था, कंप्यूटेक्स का नहीं था, तो दैट टाइम एंड इवन इफ वी वांट टू सर्व आवर क्लाइंट हम कैसे उसको एक्सेस करें, बहुत ही डिफिकल्ट था. बट नाउ यू कैन जस्ट क्लिक ऑन वन बटन. आपको एक वेबसाइट ओपन करनी है और वेबसाइट पर लॉग इन करना है और पूरा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अवेलेबल है. सो एवरीथिंग इज मूविंग. आप देख सकते हैं क्लियर टेक्स का भी नाम आपने सुना होगा, टेक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है. एक तरफ हम भी ऑफिस में कंप्यूटेक्स भी यूज़ करते हैं. तो समटाइम आई फील कि मैं कंप्यूटेक्स को, हालांकि वी कैन यूज़ फ्रॉम होम एज वेल, हमें उसके लिए सर्वर लेना पड़ता है और वो सब चीज़ें करनी पड़ती है और कई बार वो स्लो भी हो जाता है. बट वी नीड ऑल दो सोल्यूशन जो इंटरनेट पर वर्क करें. और इंटरनेट आज की डेट में 5G स्पीड है, तो हर चीज़ वो एक्सेस की जा सकती है. हर क्लाइंट की इंफॉर्मेशन, डेटा हम क्लाइंट पर एक्सेस कर सकते हैं. और उससे बेनिफिट क्या है, वी कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम. अगर मैंने कंप्यूटेक्स में भी देखा है, अगर मुझे अपने घर से काम करना है कंप्यूटेक्स में, तो मुझे ऑफिस में बोलना पड़ता है कि प्लीज़ ओपन योर सर्वर, देन ओनली आई कैन वर्क in my home, or maybe if I am at somewhere else. So first I will like to tell you, ये एक लिंक है, इस पर आपको जाना है. And once you click on avail Zoho Books accounting software, once you click on this, so now you can see digital financial platform for chartered accountants and access app, Zoho Practice, Zoho Books, Zoho Expenses, Zoho Payroll and Zoho Inventory. I'll just give you quick idea कि ये आखिर apps हैं क्या और इनको किस तरीके से यूज़ किया जाता है, how you can use it.
So first I will start with giving you quick introduction because अभी just before my session इंद्र कौर मैम ने सेशन लिया. So she told कि हर चीज़ चैट जीपीटी से हो गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ हो गई है, तो why not अकाउंटिंग. अकाउंटिंग भी क्यों नहीं ऑटोमेट हो सकती. और पुराने ज़माने में या पहले के ट्रेडिशनल मेथड में अगर मुझे अकाउंटिंग करानी है तो व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू हायर अकाउंटेंट, और उस अकाउंटेंट को मैं बैंक स्टेटमेंट देता था और वो बैंक स्टेटमेंट पंच किया करता था टैली के अंदर और मेरी ये पूरी अकाउंटिंग हो जाती थी. तो क्या ये स्टेप स्किप किया जा सकता है कि इंस्टेड ऑफ ये जो बैंक स्टेटमेंट है मैं उस अकाउंटेंट को दूं, क्या मैं एक ऐसे टूल को दूं, चैट जीपीटी को दूं या कोई ऐसी मशीन लर्निंग को दूं जो बैंक स्टेटमेंट को रीड करके मेरी ट्रांजैक्शंस को ऑटोमेटिकली उस एक्सपेंसेस में कैटेगराइज कर दे. इज दैट पॉसिबल? डेफिनेटली ये पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि अगर अकाउंटेंट एक खर्चे की नरेशन पढ़ के बार बार उसे ट्रेवल एक्सपेंस में डाल रहा है, या वो नरेशन पढ़ रहा है कि ये खर्चा ऊबर का है, ओला का है, और उसे वो अगर या जोमेटो का एक्सपेंस है उसे अगर वो फूड एक्सपेंस में पुट कर रहा है, तो क्या ये काम उस अकाउंटेंट को रिप्लेस करके कोई मशीन लर्निंग या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं हो सकता जो उसको लर्न करके उस एक्सपेंस को ऑटोमेटिकली कर दे? यस, डेफिनेटली हो सकता है. और इन चीज़ों पर जो मेरी ऑब्जर्वेशन है काम हो रहा है और कई हद तक हम उसे पास भी कर चुके हैं. राइट तो आई टेल यू कि कैसे हम जो बुक्स में, अगर हम जो बुक्स को अपनी बैंक स्टेटमेंट देते हैं तो किस तरीके से वो बैंक स्टेटमेंट को रीड करके अपने आप ट्रांजेक्शन्स को कैटेगराइज कर देता है, अपने आप पीएनएल बना देता है, अपने आप बैलेंस शीट बना देता है, और भी कई सारे हम एडवांस ऑटोमेशन इसके अंदर कर सकते हैं. तो फर्स्ट व्हाट इज जो बुक्स? जो बुक्स इज जस्ट अ क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर विच इज़ अ जीएसटी कंप्लायंट सॉफ्टवेयर विच इज़ एब्सोल्युटली फ्री फॉर ऑल आवर मेंबर्स. सो आप इसको यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद जोहो प्रैक्टिस है जो रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है जोहो ने. जो प्रैक्टिस है हम अपने सारे क्लाइंट्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं कोलैबोरेशन वे में. तो जो प्रैक्टिस अपने क्लाइंट्स को मैनेज करने के लिए यूज़ किया जाता है. इंपोर्ट ऑल एंड मैनेज ऑल द क्लाइंट्स एट सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म. व्हाट इज जोहो एक्सपेंस? जो एक्सपेंस अगेन आपके कई सारे ऐसे क्लाइंट्स होंगे जिनके पीएनएल में बहुत सारा ट्रैवल एक्सपेंस आ रहा होगा. अब वो ट्रैवल एक्सपेंस को कैसे मैनेज करते हैं कि जो एम्प्लॉई है अगर वो ट्रैवल पर जा रहा है तो उसका फ़ोटो खींचता है, फ़ोटो इमेज लेता है और फिर वो उस इमेज को अपने एचआर को या अपने बॉस को भेजता है. फिर वो उसकी एक्सेल शीट बनती है, उस एक्सेल शीट के बाद वो एक्सपेंस अप्रूव होता है, फिर वो पीएनएल में बुक होता है, फिर उसके बाद उसको एक्सपेंस रिम्बर्स होता है. और कई बार इसके बीच में बहुत बड़ा प्रोसेस होता है उस ट्रैवल एक्सपेंस को मैनेज करने के लिए अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है. लेकिन उस चीज़ को भी सिंप्लीफाई किया है जोहो एक्सपेंस ने. जस्ट आप एक फ़ोटो खींचेंगे अपने एक्सपेंस की और वो एक्सपेंस ऑटोमेटिकली आपके पर्टिकुलर एम्प्लॉय के रिम्बर्समेंट में ऐड हो जाएगा और उसको रिम्बर्स किया जाएगा, प्रॉपर अप्रूवल सिस्टम होगा. ये सब चीज़ें मैनेज की जा सकती हैं जोहो एक्सपेंस के थ्रू. नाउ व्हाट इज़ जोहो पेरोल? जोहो पेरोल इज़ आई कैन से जो हम अपने ऑफिस के अंदर पेरोल मैनेज करते हैं. बड़े से बड़ा पेरोल है, हमें हर 10 तारीख को सैलरी देनी है, 12 तारीख को या फर्स्ट को हमें सैलरी पे करनी है. उसके लिए हमारे पास कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है. आज भी कई सारी ऑर्गेनाइजेशन एक्सेल पर डिपेंडेंट है. एक्सेल पर पूरा पेरोल बन रहा है, उसके बाद उन एंट्रीज को हम टैली पर या मे बी किसी अदर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पर रिकॉर्ड कर रहे हैं और काफ़ी उसमें सिंक्रोनाइज नहीं है, इंटीग्रेशन नहीं है. सो व्हाट जोहो पेरोल कैन डू? जोहो पेरोल कैन मेक योर पेरोल सिंप्लीफाई. आप अपने पीएफ, ईएसआई, इवन एक अगर आपके एम्प्लॉय का एक पूरा पोर्टल बन जाता है, वहाँ से वो अपना फॉर्म 16 डाउनलोड कर सकता है, अपने डिडक्शंस चेक कर सकता है, अपने क्लेम कर सकता है. ईयर एंड पे दिसंबर में हर एम्प्लॉय को अपनी इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन देनी होती है. तो अब वो डिक्लेरेशन का प्रोसेस कैसा होना चाहिए? डेफिनेटली बहुत सिंप्लीफाई होना चाहिए. एम्प्लॉय का कोई पोर्टल होना चाहिए, वहाँ पर वो लॉगिन करे, अपनी इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन करे, उससे उस एचआर को वहाँ पर डेटा मिल जाए. तो ये सब चीज़ें जो काफ़ी ज़्यादा अनऑर्गेनाइज वे में हो रही थी, जोहो ने उसे कोशिश करी है कि उसे सिंक्रोनाइज वे में काम किया जा सके. और जोहो इन्वेंट्री, इफ़ यू आर डीलिंग इन इन्वेंट्री, अगर आप इन्वेंट्री में डील करते हैं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट भी, यस, पेरोल में अटेंडेंस नहीं है, जोहो पीपल में अटेंडेंस है. बट अब आ गया है जोहो पेरोल में अटेंडेंस, तो आप उसको भी एक्सेस कर सकते हैं. तो जोहो इन्वेंट्री, अगर मैं जोहो इन्वेंट्री की बात करूं तो इफ़ अगर आप अमेज़ॉन पर गुड्स सेल करते हैं, आजकल व्हाट आई वाज, मैं कुछ रिसर्च कर रहा था, मैं देख रहा था कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री काफ़ी तेज़ी से मूव हो रही है.
और कई सारे CAs जो हैं ई कॉमर्स के क्लाइंट्स में भी आपके पास भी हों, जो ई कॉमर्स में डील करते हो, कोई अमेजोन पे गुड्स बेच रहा है, कोई फ्लिपकार्ट पे गुड्स बेच रहा है, कोई शॉपिफाई पर गुड्स बेच रहा है। तो हाउ टू मैनेज दोज अकाउंटिंग, उनकी अकाउंटिंग को हम कैसे मैनेज करें, क्योंकि उनकी अकाउंटिंग काफ़ी वी कैन नॉट से कि वो जर्नलाइज अकाउंटिंग है, देयर अकाउंटिंग इज़ क्वाइट स्पेशलाइज्ड, उनकी अकाउंटिंग थोड़ी स्पेशलाइज है, क्योंकि वो पेमेंट्स भी कलेक्ट करते हैं अमेजोन से, उन्हें फिर TCS के भी प्रोविजंस वहाँ पर लगते हैं। तो कैसे हम उनको मैनेज कर सकें, सो उसको मैनेज किया है जोहो इन्वेंट्री ने। तो यू कैन सी देयर आर मल्टीपल सॉफ्टवेयर। वैसे तो मैं जोहो की बात करूँ तो मल्टीपल सॉफ्टवेयर है, और हम खुद अपने ऑफिस के अंदर जोहो के कई सारे एप्लीकेशंस को यूज़ कर रहे हैं। जोहो इज़ 55 प्लस ऐप्स हैं जोहो के, 150 प्लस कंट्रीज़ के अंदर जोहो है, एंड 25 ईयर्स प्लस इनको काम करते हुए हो गए हैं, और 100 मिलियन प्लस यूज़र्स जोहो के ऑलरेडी हैं, और कनेक्टेड सिस्टम है। सो 25 प्लस ईयर्स। यस, यस बिल्कुल है। जितने भी जोहो, बेस्ट पार्ट ये है कि जोहो के जितने भी ऐप्स हैं, यहाँ पर मैं आपको जोहो के सारे ऐप्स एक बार शो कर रहा हूँ जो जोहो के ऐप्स हैं। सबसे पहले जोहो इनवॉइस से इन्होंने स्टार्ट करा, जोहो इनवॉइस और CRM, फिर धीरे धीरे बढ़ते गए और ऐप निकालते गए। जोहो बुक्स निकाला, जोहो बैकस्टेज निकाला, जोहो कैंपेन निकाला। जोहो कैंपेन जैसे हमें अपने क्लाइंट्स को ईमेल करने हैं, GST के अपडेट्स देने हैं, इनकम टैक्स के अपडेट्स देने हैं, तो हमें कोई ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए कि भाई मेरे पास अपने एक ऐसा सॉफ्टवेयर हो जहाँ पर सारे क्लाइंट की लिस्ट हो, मैंने कैटेगराइज करी हो कि ये मेरे ITR के क्लाइंट हैं, ये मेरे GST के क्लाइंट हैं, ये मेरे LLP के क्लाइंट्स हैं। और फिर मैं उनको जैसे ही कोई LLP की ड्यू डेट आती है या GST की ड्यू डेट आती है, मैं वहाँ पर मेल शूट करता हूँ या अपडेट्स देता हूँ। तो वो जोहो कैंपेन के थ्रू किया जा सकता है। हालांकि मैं भी ये 45 ऐप्स यूज़ नहीं कर रहा, काफ़ी ऐप्स मैंने इसमें यूज़ करे हैं। जैसे अब इसमें जोहो बुकिंग करके एक ऐप है। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्लाइंट आता है कि मुझे कहता है कि मुझे आपसे अपॉइंटमेंट चाहिए। सो हाउ, अब मैं अपॉइंटमेंट चाहिए तो मैं मैनुअली सारी चीज़ें कर रहा हूँ। लाइक डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास हम जाते हैं तो वहाँ पर एक क्लर्क बैठा होता है, वो अपॉइंटमेंट ले रहा होता है, कैंसिल कर रहा होता है, तो उस क्लर्क को रिप्लेस कर देता है पूरा जोहो बुकिंग। आपका एक लिंक है, उससे आपके उस लिंक से आपका कस्टमर आपके लिए टैक्स, आपको क्लाइंट को अपॉइंट, और लगता भी है कि हम उससे चार्ज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल माई क्लाइंट रिक्वायर अपॉइंटमेंट फ्रॉम मी, मैंने उसकी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट पूरी प्रिपेयर कर दी, अब मुझे उससे अपॉइंटमेंट करनी है 1 घंटे की। हालांकि मैं जूम पर, आज की डेट में हर चीज़ ऑनलाइन है, जूम पर, गूगल मीट पर या फिर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पर हम मीटिंग करते हैं, तो उस मीटिंग को भी हम कैसे चार्ज करें कमर्शियली, उसके लिए भी हमारे पास प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। सो फ्रॉम जोहो बुकिंग यू कैन डू ऑल दोज थिंग्स, जोहो बुकिंग इससे कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हालांकि हम जो फोकस करेंगे, आज का जो गोल है, मैं जोहो बुक्स के बारे में ज़्यादा डिस्कस करूंगा, बट ये सारे ऐप्स आपस में सिंक्रोनाइज वे में काम करते हैं, जिससे काफ़ी हेल्प मिलती है। फॉर एग्जांपल अब हम ऑफिस के अंदर गूगल सूट यूज़ करते होंगे, मे बी आप में से काफ़ी सारे लोग गूगल सूट यूज़ करते होंगे, गूगल जिसको हम वर्क स्पेस बोलते हैं। उसकी जगह अगर हम जोहो वर्क स्पेस यूज़ करें, जोहो की ईमेल से हम काम करें, तो हम अपनी 1/3 कॉस्ट को सेव कर सकते हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल 300-400 रुपीज़ पर ID पे कर रहे हैं अपने ऑफिस के अंदर जीमेल के लिए, तो इंस्टेड हम जीमेल पे जाने की बजाय हम जोहो मेल पर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, एंड यू कैन पे 1/3 कॉस्ट। बेस्ट पार्ट ये है कि देखिए, गूगल बाहर का है, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के बाहर का है, और जोहो इंडिया की कंपनी है, तो डेफिनेटली हम जितने भी वैसे ज़्यादातर प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं हम इंडिया के बाहर के ही यूज़ करते हैं। जीमेल हम US का यूज़ कर रहे हैं, टीम्स हम US का यूज़ कर रहे हैं, जूम US का यूज़ कर रहे हैं। या तो हार्डवेयर चाइनीज़ होता है, सॉफ्टवेयर अमेरिकन होता है। मतलब ज़्यादातर मैंने देखा है कि हार्डवेयर जो बन रहे हैं वो चाइना में बन रहे हैं, और जो सॉफ्टवेयर बन रहे हैं वो अमेरिका में बन रहे हैं। बट नाउ सिंस आपने नाम भी सुना होगा श्रीधर वेम्बू का, सो दे हैव टेकन दिस इनिशिएटिव, एंड वी शुड एज अ इंडियन डेफिनेटली सपोर्ट दिस इनिशिएटिव। सो आई विल जस्ट कम टू जोहो बुक्स. What is Zoho Books? Zoho Books is a cloud-based accounting software from which you can do all your bookkeeping, and even when you learn or understand your Zoho Books, आप सिर्फ इंडिया के क्लाइंट को सर्व नहीं कर सकते, आप इंडिया के बाहर के क्लाइंट्स को भी सर्व कर सकते हैं। द बेस्ट पार्ट इज यू हैव ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि जोहो इंडिया में ही एग्जिस्ट नहीं करता, इंडिया के बाहर भी एग्जिस्ट करता है। सो डेफिनेटली ऑल ऑफ अस वी वांट टू अर्न इन डॉलर्स। Yes, so and when I see on Google, मैं रिसर्च करता हूँ, तो I can see lot of people from Pakistan, from Philippines,
from India, they are targeting US clients. मैंने अभी रिसेंटली इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट कोर्स ऑन यूएस ओवरसीज अकाउंटिंग भी कंप्लीट करा, तो जहाँ पर मैंने इन चीज़ों को और ज़्यादा समझा, क्योंकि अभी आपको पता होगा गुजरात में भी काफ़ी सारी डेवलपमेंट हो रही है। गुजरात के अंदर गिफ्ट सिटी के नाम पर काफ़ी काम हो रहा है। वहाँ पर मोदी जी ने काफ़ी इन्वेस्ट किया है, गवर्नमेंट काफ़ी इनिशिएटिव ले रही है, और जो वहाँ पर सर्विसेज दी जा रही है यूएस क्लाइंट्स को, तो वहाँ पर कई सारे, मैं अपने फ्रेंड से मिला, मैंने देखा कि काफ़ी लोग अब गुजरात के अंदर, सूरत के अंदर, यहाँ से लोग काफ़ी उभर के आ रहे हैं। आप में से भी कोई हो सकते हैं जिनकी वहाँ पर प्रैक्टिस हो, या जो वहाँ से बाहर के क्लाइंट्स को टारगेट कर रहे हैं। द बेस्ट पार्ट इज़, जैसा कि हम सुनते आ रहे हैं पिछले 4-5 साल से, आई वॉज डिस्कसिंग विद माई पार्टनर ऑल्सो, ही इज़ ऑल्सो माई ब्रदर, सो कि यूएस में अकाउंटेंट की शॉर्टेज है, एंड दैट इज़ ट्रू। यूएस के अंदर अकाउंटेंट की शॉर्टेज है। दे पीपल डोंट वांट टू डू ऑल दिस बुक कीपिंग ऑन ऑल दोज असाइनमेंट्स, वो इन सब में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है, बट दे आर मोर फोकस टूवर्ड्स रिसर्च वर्क एंड ऑल दोज थिंग्स। और अगर हम देखें तो इंडिया के कंपिटिटिव में, वहाँ पर हम किसी टास्क को लेते हैं या काम को करते हैं, तो जो काम हम यहाँ पर जो फीस चार्ज कर रहे हैं, उससे 10 टाइम्स ज़्यादा फीस हम वहाँ पर चार्ज कर सकते हैं। दैट पोटेंशियल इज़ देयर, एंड फर्दर वहाँ पर शॉर्टेज भी है। नाउ टुडे, सिंस आई हैव वेरी लेस टाइम, आई विल जस्ट डिस्कस 5 थिंग्स जो कि हम ऑटोमेट कर सकते हैं ज़ोहो बुक्स के थ्रू। किन 5 चीज़ों को हम ज़ोहो बुक्स के थ्रू ऑटोमेट कर सकते हैं, मैं उन 5 चीज़ों को डिस्कस करूंगा। हालांकि देयर आर मल्टीपल थिंग्स विच वी कैन ऑटोमेट थ्रू ज़ोहो बुक्स। फर्स्ट इज कनेक्टेड बैंकिंग, ऑटोमेटिक इंपोर्ट ऑफ बैंक फीड्स। अगर आप ज़ोहो बुक्स पर लॉग इन करते हैं, आई जस्ट शो यू ज़ोहो बुक्स अकाउंट। दिस इज माई ज़ोहो बुक्स अकाउंट, और ये मेरा ज़ोहो बुक्स अकाउंट इंस्टीट्यूट वाला ही है। यू कैन सी ICAI कस्टम प्लान, मुझे इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना। सो दिस इज ICAI कस्टम प्लान, यू कैन सी ओवर देयर। और यहाँ पर यू कैन सी दिस इज, ये कंप्लीट डैशबोर्ड है ज़ोहो बुक्स का। जैसे ही मैं लॉग इन करता हूँ, कुछ इस तरीके का इंटरफेस मुझे दिखाई देता है। जो आज की डेट में चीज़ें चल रही हैं या प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, पीपल वांट टू सी वेरी इंटरैक्टिव डैशबोर्ड एंड वेरी इंटरैक्टिव थिंग्स। मैं टेली को बेकार भी नहीं कहूँगा, बुरा भी नहीं कहूँगा। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे भी काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं वहाँ पर, बट जब वो आवाज़ आती है टू टू टू, तो मतलब जब हम वो यूज़ करते हैं और ऊपर नीचे जाते हैं, तो एज अ बिजनेस ओनर, जो अगर मैं, इफ़ आई एम बिजनेस ओनर, इफ़ आई एम एंटरप्रेन्योर, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड टेली if I am businessman. If you are accountant, आप अकाउंटेंट हैं, आप टेली को समझ सकते हैं, कहाँ पर क्लिक करना है, कहाँ से मैं बैलेंस शीट निकाल सकता हूँ, कहाँ से मैं P&L निकाल सकता हूँ। एज अ अकाउंटेंट यू आर वेरी वेल अवेयर अबाउट टेली, बट एज अ बिजनेस ओनर आई नीड टू हैव फाइनेंशियल कंट्रोल इन माई फाइनेंसिस। मैं जब अपने क्लाइंट से मिला, मैंने बात करी, मैंने कहा व्हाई डू यू वांट टू शिफ्ट फ्रॉम टेली टू ज़ोहो बुक्स। ही सेज, वो अकाउंटेंट जो है वो अपने आप कुछ ना कुछ करता रहता है, वो तो GST फाइल करता रहता है, बैलेंस शीट बना लेता है, P&L बना लेता है, लेकिन मैं तो कुछ देख ही नहीं पाता कि मेरा क्या प्रोग्रेस है, मैंने कितना सेल करा पिछले साल। उसके लिए मुझे अलग से एक्सेल बनानी पड़ती है, अलग से MIS बनानी पड़ती है, सब कुछ अलग करना पड़ता है। जो टैली है वो तो अकाउंटेंट के लिए है, मेरे लिए नहीं है। एंड अकाउंटेंट इज अलग और बिजनेस ओनर अलग पाथ पे चल रहे हैं, जबकि होना ये चाहिए कि दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर हो और दोनों एक ही जगह से इनपुट ले रहे हो। सो दिस इज द मेन रीजन। कई सारे एंटरप्रेन्योर्स मिले, उन्होंने कहा कि हमें फाइनेंशियल विजिबिलिटी नहीं मिल पाती, हाउ टू टेक फाइनेंशियल डिसीजंस अबाउट, कैसे मैं फाइनेंशियल डिसीजंस लूँ, कैसे मैं बजट्स बनाऊँ। उसके लिए मुझे अलग से एक सॉफ्टवेयर पर डिपेंड रहना पड़ता है, या अलग से मुझे एक पर्सन हायर करना पड़ता है। सो दैट प्रॉब्लम, इफ यू कैन सी, दिस इज होम पेज। यहाँ पर दिस इज अ आइटम, here you can create all your item. If you are dealing in iPhone, then you can create all your item. If you are tax consultant, again you can create all your products like tax audit, GST registration, GST ऑडिट फी। यहाँ पर आप अपने सारे आइटम्स क्रिएट कर सकते हैं, एंड इट्स वेरी सिंपल। यू डोंट हैव टू डू एनी, आपके पास कोई टेक्निकल नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है। और जो ये ज़ोहो बुक्स बनाया गया है, ये इस प्लेटफॉर्म से बनाया गया है कि इफ़ यू आर फ्रॉम नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड, तो भी आप ज़ोहो बुक्स यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर मुझे कोई इनवॉइस बनाना है, कोई सेल रिकॉर्ड करनी है, तो जस्ट इट्स अ फॉर्म फिलिंग। आपको एक फॉर्म की तरह डिटेल भरनी है। मैंने यहाँ न्यू इनवॉइस बनाना है, पुट अ कस्टमर नेम, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, सब्जेक्ट,
आइटम डिटेल, आपने क्या आइटम सेल किया, एंड देन जस्ट क्लिक ऑन सेव, योर इनवॉइस इज रेडी. It hardly takes 2 minutes to create an invoice, and even you can create this invoice from mobile phone. What I have seen, जहाँ मैं पीछे like when we were doing articleship, what my boss used to do, मेरे बॉस किस तरीके से काम करते थे, उनके पास एक एक्सेल फाइल होती थी जहाँ पर वो सारे परफॉर्मा इनवॉइस बनाते थे, और फिर उसी एक्सेल फाइल में एक और एक्सेल फाइल होती थी जहाँ पर इनवॉइस बना करते थे, टैक्स इनवॉइस, जब सर्विस टैक्स होता था या जो भी एक्साइज होता था हमारे पास, फिर उन इनवॉइस को टैली में रिकॉर्ड किया जाता था. ईयर एंड पे या मंथ एंड पे कोई अकाउंटेंट आता था, उसे टैली पर रिकॉर्ड करता था. तो यहां पर आई कैन सी देयर आर लॉट ऑफ डुप्लीकेशन इज हैपनिंग व्हेन यू कैन क्रिएट. जब आप अपना परफॉर्मा इनवॉइस इसी में बना सकते हैं, यू कैन क्रिएट योर कोटेशन फ्रॉम हियर, then you can create your invoice from here, and once you create your invoice, automatic journal entry would be passed. जर्नल एंट्री ऑटोमेटिकली पास हो जाएगी, आपको अलग से एफर्ट भी नहीं करने. सो दिस ई इनवॉइसिंग भी हो जाएगी डेफिनेटली, बिकॉज दिस यू कैन ऑल्सो इंटीग्रेट विद योर ई इनवॉइसिंग पोर्टल. सो दिस थिंग्स यू कैन ऑटोमेट यूजिंग ज़ोहो बुक्स. और first time when you are creating an invoice, you have to give what series you want to follow. जैसे this is my first invoice, तो first time I will give my invoice number, but next time ये अपने आप change कर देगा. तो आपको अलग से मे बी ऐसा भी हो सकता है कि we have multiple branches, तो इन दैट केस यू कैन क्रिएट ट्रांजेक्शन सीरीज. वहां पर आप 2 ट्रांजेक्शन सीरीज कर सकते हैं कि इस ब्रांच के लिए मैं ये फॉलो करता हूं और इस ब्रांच के लिए ये फॉलो करता हूं, तो दैट कैन बी पॉसिबल. यस डेफिनेटली, आप ब्रांच वाइज अकाउंटिंग, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन. आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि कई लोग, मैंने जब अपने क्लाइंट से बात करी तो आई हैव ऑल्सो सीन, और मे बी आपने भी देखा होगा कि अगर किसी के मल्टीपल ब्रांचेस हैं, अगर 10 ब्रांचेस हैं तो 10 टैली चल रहे हैं. इफ यू हैव 10 ब्रांचेस तो क्लाइंट्स 10 टैली मेंटेन कर रहे हैं. अगर 5 ब्रांचेस हैं तो 5 टैली मेंटेन हो रहे हैं. बट दैट इज नॉट देयर इन ज़ोहो बुक्स. ज़ोहो बुक्स में आप सारी ब्रांचेस को एक ही बारी में आप मैनेज कर सकते हो, आपको अलग अलग टैली बनाने का जरूरत नहीं है. आप एक ही ज़ोहो के अंदर आप ब्रांचेस क्रिएट करें, और किस ब्रांच के अंदर वो आप एक्सपेंस रिकॉर्ड करना चाहते हो, दैट इज वेरी मच पॉसिबल. और ईयर एंड पे जो हमें कंसोलिडेशन वर्क एक्स्ट्रा करना पड़ता है कि मुझे अगर कंसोलिडेट करके P&L बैलेंस शीट निकालनी है, तो दैट इज ऑल्सो by default is there. I don't have to put any extra effort in this. इंटर ब्रांच अकाउंटिंग होगी फॉर, अगर आपको कुछ अपोर्शनमेंट करने हैं, खर्चे कुछ ट्रांसफर करने हैं, तो दैट इज पॉसिबल. बट कंसोलिडेटेड रिपोर्ट आपको मिल जाएगी. अगर आपने कहा कि अगर दूसरी ब्रांच के लिए, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर उसके इंटर ब्रांच के एक्सपेंस की तरह एक तरह से डेटर्स क्रिएट हो जाएगा उसकी तरह से, और बैंक अकाउंट जो भी आप सिलेक्ट करेंगे वहाँ से पेमेंट होगा. यस यस, डेटर अकाउंट होगी. जब कंसोलिडेटेड निकालेंगे तो वो नॉक ऑफ हो जाएगा. बाकी अगर आपको चाहिए तो मैं आपको एक बार अलग से सेशन के एंड में एक बार दिखा भी दूंगा कि वो कैसे पॉसिबल है. जनरली जो टैली की तरह आप इसमें मल्टीपल कंपनीज नहीं क्रिएट कर सकते. व्हाट वी यूज टू हैपन, जैसे टैली के अंदर हम एक ही टैली हमने बाय करा, उसके अंदर हम 50 क्लाइंट्स बनाते हैं, 100 क्लाइंट्स बनाते हैं. दैट इज नॉट देयर इन ज़ोहो बुक्स, क्योंकि ये उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड नहीं है. दिस इज अ सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल. और ये कह सकते हैं कि ये उन प्रैक्टिसेस को फॉलो करता है जैसे यूएस के अंदर मेनली क्विक बुक्स फॉलो होता है. जो मैंने अभी तक देखा है यूएस के अंदर, जैसे इंडिया के अंदर डोमिनेंट मार्केट टैली का है, ज़ोहो बुक्स का है, उसके बाद सेकेंडरी लेवल पर है. तो इसी तरह से यूएस के अंदर क्विक बुक्स का है. और हालांकि लोग अब ज़ोहो बुक्स पर शिफ्ट हो रहे हैं, इंडिया में भी काफ़ी लोग ज़ोहो बुक्स पर आ रहे हैं. और ये हमारी तरह एक तरह से हमारे लिए बिजनेस भी बन जाता है कि हम अगर क्लाइंट को शिफ्ट करते हैं ज़ोहो बुक्स पे, सो वी विल बी हेल्पिंग देम इन माइग्रेशन, विल बी डेफिनेटली चार्जिंग देम फॉर दिस फी कि भाई हम आपको माइग्रेट करके दे रहे हैं और असिस्ट कर रहे हैं. और ये डिपेंड करता है कि आप जिसको माइग्रेट कर रहे हैं वो कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है. अगर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तो मे बी इट विल टेक हार्डली 2 months और 3 months. और अगर आप किसी
बड़ी कंपनी को माइग्रेट कर रहे हैं तो मे बी उनको पैरेलली टैली भी चलाना पड़े कुछ महीने तक, जो बुक्स भी चलाना पड़े, और वो प्रोजेक्ट आपको मे बी 1 ईयर तक फॉलो करना पड़े, देन ओनली मे बी 6 मंथ्स और मे बी 1 ईयर. सो डेफिनेटली यू कैन जनरेट योर न्यू बिजनेस फ्रॉम दिस ऑल्सो. सो दिस इज वन थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट. पहले कनेक्टेड बैंकिंग के बारे में बात कर लेते हैं. व्हाट इज कनेक्टेड बैंकिंग? यहाँ पर आप ऐड बैंक में जाएंगे और यू कैन इंटीग्रेट योर बैंक अकाउंट डायरेक्टली. व्हाट डज इट मीन? अगर आपका HSBC बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, येस बैंक है, SBI बैंक है, तो आप एक बार यहाँ पर क्लिक करेंगे और अपने नेट बैंकिंग के साथ कनेक्ट करेंगे तो जो भी बैंक के अंदर ट्रांजैक्शन है वो अब ऑटोमेटिकली आपके सॉफ्टवेयर में आने लग जाएंगी. जो भी आपके बैंक स्टेटमेंट के अंदर ट्रांजैक्शन है वो ऑटोमेटिकली आपके सॉफ्टवेयर के अंदर आने लग जाएगी. आपको डेली बेसिस पर उसे सिंक्रोनाइज करना होगा, बस एक क्लिक करना होगा कि जस्ट सिंक, और आपकी वो ट्रांजैक्शंस ऑटोमेटिकली आ रही है. तो आप देखिए कि ये जो मैं अपने अकाउंटेंट को बैंक स्टेटमेंट दिया करता था, उसे बार बार हर महीने वो मेरे पास आता था, मैं उसे बैंक स्टेटमेंट देता था, वो काम रिप्लेस हो गया क्योंकि अब हमारी बैंकिंग क्या हो गई, कनेक्ट हो गई. यहाँ हमारे पास हमारा जो करंट अकाउंट है वो सेव हो जाएगा और यहाँ पर सारी ट्रांजेक्शन्स फेच हो जाएंगी. अपडेट करना पड़ेगा. यस. तो वन बेन हाँ, वो दैट डिपेंड्स आप उसको अलाउ करते हैं या नहीं करते. अब अगर आप कनेक्टेड बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं, आप वेंडर्स पेमेंट डायरेक्टली यहीं से करना चाहते हैं क्योंकि आप वेंडर्स के बिल्स को यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, जितने भी हर महीने आपके बिल्स आ रहे हैं आपके वेंडर्स के, आपके सप्लायर्स के. अब यहाँ पर वो बिल खड़े हो गए और आपके पास आपका साइकिल है कि हर महीने की 5 तारीख को मैं सारे बिल्स क्लियर करूँगा. तो अब वो बिल्स एक एक जाके क्लियर करना है नेट बैंकिंग से जाके, या यहीं से ही सारे 100 के 100 बिल एक बार में क्लियर करने हैं. ये आपके बैंकिंग के साथ कम्युनिकेट करेगा. यहाँ पर आप देखेंगे बैंकिंग में जाएंगे, ऐड बैंकिंग पर क्लिक करेंगे और मैं HSBC पर जाता हूँ. तो HSBC अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो आप अपने वेंडर्स को इंडिविजुअली और बल्क में पे कर सकते हैं, अपना GST डायरेक्टली जो बुक से पे कर सकते हैं, अपनी बैंक ट्रांजेक्शन्स को फेच कर सकते हैं, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कर सकते हैं और स्टेटस देख सकते हैं और रियल टाइम अकाउंट बैलेंस देख सकते हैं. दैट इज जस्ट फॉर पेमेंट. अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, मतलब पेमेंट रिलीज करना की बात हो. यहाँ पर सिर्फ पेमेंट की बात हो रही है, बाकी 15 CA/CB के लिए आई नीड टू एक्सप्लोर. जो आपका क्वेश्चन है दैट इज वेरी मच वैलिड और मे बी तरुण विल आंसर यू फॉर दिस बिकॉज ही विल बी डीलिंग इन 15 CA/CB. तो वो जो क्रॉस बॉर्डर है उसके लिए किस तरीके से होगा. बाकी बेनिफिट ये है, यू आर पेइंग डायरेक्टली GST. यहाँ से आप GST जमा करा रहे हैं, उसकी पेमेंट्स अपने आप हो रही है. तो अगर आप इन सारी बातों को इंक्लूड करेंगे तो अगेन 20% 30% टाइम यहाँ पर हमारा सेव हो जाता है. अगर मैं सिर्फ बैंक को कनेक्ट कर दूँ, GST की पेमेंट डायरेक्टली यहाँ से कर दूँ, वेंडर की पेमेंट डायरेक्टली यहाँ से कर दूँ और ट्रांजेक्शन्स का स्टेटस देख लूँ, तो मुझे लगता है 10-20% टास्क हमारा यहाँ पर जो हम मैनुअली किया करते थे दैट वी कैन सेव. यस, यहाँ पर आप यूज़र एंड रोल्स में जाके अपने यूज़र्स क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कई सारे एडमिन यूज़र है. जैसे मैं एडमिन यूज़र हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई सिर्फ रिसेप्शनिस्ट रखी हुई है, वो सिर्फ इनवॉइस बनाता है, तो फिर मैं उसको सिर्फ इनवॉइस तक का ही राइट दूंगा कि आप सिर्फ मेरा इनवॉइस बनाइए और सेव करिए. दे शी कैन नॉट सी माई PNL, माई बैलेंस शीट एंड ऑल दोज थिंग्स. सो आई कैन रिस्ट्रिक्ट माई राइट. रिस्ट्रिक्ट. जस्ट अ सेकेंड. यहाँ से आप जो जिसको एडमिन को राइट देंगे तो आई कैन शो यू. यहाँ पर आप जब इनवाइट करेंगे या रोल्स क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर एक रोल्स का ऑप्शन आता है. व्हेन यू क्रिएट अ रोल्स, तो यहाँ पर एक न्यू रोल मैं क्रिएट करता हूँ. अब मैं इस रोल को क्या क्या दिखाना चाहता हूँ, क्या क्या नहीं दिखाना चाहता, बैंकिंग मेरा फुल एक्सेस देना चाहता हूँ, सिर्फ व्यू का, सिर्फ क्रिएट का, तो मैं एक एक चीज़ को कंट्रोल कर सकता हूँ. मैं उसे क्या दिखाना चाहता हूँ, क्या नहीं दिखाना चाहता. आई कैन. मैं आपका क्वेश्चन एक बार काइंडली प्लीज रिपीट. जो एडमिन के पास होगा सिर्फ उसी के पास, सबके पास नहीं चले जाएंगे. जो एडमिन के पास होगा सिर्फ उसी के पास जाएंगे.
आप जिसको एडमिन बनाएंगे यहाँ पर। नो नहीं, अकाउंटेंट को आप सिर्फ बैंकिंग के अंदर आप क्या राइट देना चाहते हैं? आप अकाउंटेंट के अंदर भी, बैंकिंग में भी सिर्फ व्यू, क्रिएट, एडिट और डिलीट और परफॉर्म करने के लिए भी आप राइट देना चाहते हैं। अब मैं सिर्फ उसे व्यू करना देना चाहता हूं तो मैं सिर्फ व्यू का राइट दूंगा, फुल एक्सेस नहीं दूंगा। सो दिस इज द वे यू कैन मॉडिफाई। यस, आपका भी कुछ क्वेश्चन था? यस डेफिनेटली, यहाँ पर आप जाएंगे तो जितने भी आपके क्लाइंट्स होंगे आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। अभी मेरे पास यहाँ मैंने सिर्फ डेमो अकाउंट खोला हुआ है, अगर मैं अपना रियल अकाउंट खोलूँगा तो मेरे पास यहाँ पर अपने सारे क्लाइंट्स यहाँ पर शो करेंगे। मुझे बस शफल करना होगा कि मुझे किस क्लाइंट पर काम करना है। जनरली जो बुक्स के केस में सब्सक्रिप्शन मैं नहीं बाय करता, क्लाइंट बाय करता है। क्लाइंट विल नीड टू पे सब्सक्रिप्शन कॉस्ट फॉर जोहो बिकॉज दिस इज हिज कॉस्ट, नॉट माई कॉस्ट। Yes, yes, yes. And whether it supports department wise P&L. Yeah. Sorry, bank. अगर देखिए, वैसे तो बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर जब हम इंपोर्ट करेंगे तो वो एज इट इज बैंक स्टेटमेंट आपको शो करेगा। दैट लैपटॉप इज नॉट कनेक्ट, अभी कनेक्ट नहीं हो रहा, नहीं तो मैं आपको सीधा दिखाता कि कैसे बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर हम इंटीग्रेट। व्हेन वी इंपोर्ट बैंक स्टेटमेंट, जो भी बैंक स्टेटमेंट में लिखा होता है वो एज इट इज मेरे जो बुक्स में आ जाता है। नाउ आई हैव टू कैटेगराइज ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन मैनुअली। मुझे एक एक ट्रांजेक्शन्स को कैटेगराइज करना पड़ता है, वेदर दिस इज अ रेंट पेमेंट, वेदर दिस इज अ फूड एक्सपेंस, वेदर दिस इज अ वेंडर बिल। तो एक एक ट्रांजेक्शन को मुझे कैटेगराइज करना पड़ता है। अगर मैं वो ट्रांजेक्शन 1-2 महीने से कैटेगराइज कर रहा हूँ तो जोहो उसे रीड करने लग जाता है कि आप इसे कहाँ पर कैटेगराइज कर रहे हैं बार बार। तो जोहो की मशीन लर्निंग से आप वहाँ पर ट्रांजेक्शन रूल्स लगा सकते हैं और उसके बाद अगले महीने से आपको करने की ज़रूरत नहीं है, जोहो अपने आप करेगा। So now first is automatic import, second is transaction rules. One more question. Whether it supports department wise P&L? Sorry? Department wise P&L? Yes, definitely. मैं यहाँ पर अगर HR डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, लीगल डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट बना के खर्चों को रिकॉर्ड करता हूँ। लेट मी शो यू। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई जोहो बुक्स और यहाँ पर मेरे पास कोई बिल आता है परचेज के अंदर। लेट्स सी, दिस इज अ बिल। जैसे ही मैं यहाँ पर क्रिएट बिल पर क्रिएट करता हूँ तो आई कैन सी यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। रिपोर्टिंग टैग, जिसको हम टैली के अंदर कॉस्ट सेंटर बोलते हैं। टैली के अंदर वी कॉल इट एज कॉस्ट सेंटर, बट इन जो बुक्स वी कॉल इट रिपोर्टिंग टैग। मैं यहाँ पर डिपार्टमेंट बनाता हूँ और मैं उस खर्चे को जहाँ पर भी टैग करता हूँ और मैं उसे टैग करके मैं उस तरीके का प्रॉफिट एंड लॉस जनरेट कर सकता हूँ। लाइक फॉर P&L फॉर HR डिपार्टमेंट, P&L फॉर फाइनेंस डिपार्टमेंट। सो आई कैन फेच दोज P&L एज वेल एज बैलेंस शीट। यस यस, बैंक रिकंसिलिएशन का फीचर यहाँ पर आपको दिया गया है। जनरली अगर आपका बैंक बैलेंस आपने ट्रांजेक्शन्स को सारा यस नो, अगर आपका मैच कर रहा है बुक्स का बैलेंस और बैंक का बैलेंस मैच कर रहा है तो फिर देयर इज नो। नो 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 नो, यू आर, इफ यू आर जस्ट okay. No, bank statement is just a first reference point you can say, or maybe you can say for complete accounting you need proper, you need bills when आपको account डेफिनेटली आपकी की बात बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं यहाँ पर कि हमें सारे रेफरेंसेस लेने होते हैं। बैंक स्टेटमेंट चाहिए, वेंडर्स बिल चाहिए, मेरे सेल्स इनवॉइसेस चाहिए और इवन मुझे अपने चेकबुक से जितने मैंने चेक इशू करे हैं वो सब पॉइंट्स मुझे चाहिए, सब कुछ रिकॉर्ड करने के लिए। डेफिनेटली ऑल दोज पॉइंट्स वी रिक्वायर।
बैंक स्टेटमेंट में मुझे सारी ट्रांजेक्शन एक बार में सारी मिल जाती है, तो मुझे आइडिया हो जाता है कि इन ट्रांजेक्शन्स को मुझे रिकॉर्ड करना है. दैट्स इट, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. बट डेफिनेटली चेकबुक भी रिकॉर्ड करेंगे, वेंडर्स बिल को भी रिकॉर्ड करेंगे. वी विल नॉट लीव एनीथिंग. नो नो नो, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये सिर्फ ट्रांजेक्शन्स को इंपोर्ट कर रहा है. कैटेगराइज तो आप करेंगे, आप बताएंगे कि ये पैसा मुझे इससे वापस आया है या वापस देना है, ये किस चीज का पैसा है. यू हैव टू एक्सप्लेन. व्हाट ज़ो बुक्स इज डूइंग, ज़ो बुक्स इज जस्ट इंपोर्टिंग योर ट्रांजेक्शन. जो आप मैनुअली हम इंपोर्ट किया करते थे वो उसको ऑटोमेटिक कर रहा है. दैट्स इट. You can see these banks are there, Standard Chartered, HSBC, Kotak Mahindra, Yes Bank, SBI, और नीचे ये जो बैंक्स दिए गए हैं यही होते हैं. बाकी इसके अलावा आपको मैनुअली ऐड करने पड़ते हैं. वो पीएनबी यू हैव टू डू इट मैनुअली. एक्सेल फाइल वहाँ से डाउनलोड करा या नेट बैंकिंग से इंपोर्ट करना. So this is the first thing, first automation. Second is transaction rules. ट्रांजेक्शन रूल्स क्या होता है कि मैंने जोहो को ट्रेन कर दिया कि मैंने बता दिया कि जब भी नरेशन के अंदर ये लिखा है तो यू हैव टू पुट दिस एक्सपेंस इन ऊबर. अगर ऊबर का कोई भी नरेशन में लिखा आ रहा है तो वो आप ट्रेवल में डाल दो, या जोमेटो का कुछ भी लिखा हुआ आ रहा है तो आप फूड एक्सपेंस में डाल दो. मैंने जोहो को ट्रेन कर दिया, एक बार ट्रेन कर दिया, अब वो बार बार वो चीज़ अपने आप दोबारा आपसे नहीं पूछेगा, वो अपने आप कर देगा. So this is transaction rule. This is second automation. So imagine going through 100 of transaction monthly and categorizing them one by one. It's tedious, error prone and time consuming. So here we can save our time by reducing manual effort, ensure consistency and accuracy, and simplify financial reporting and reconciliation. So you can categorize your expense. You can, आप जो को इस तरह से भी इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि if there is any payment exceeding rupees 50,000 or any transaction exceeding rupees 50,000, you can give instruction whether mark it as capital expenditure or maybe bring to my notice or send me an email. So this also you can do. Again, recurring payment like office rent, if you are paying automatic every month, तो वहाँ पर भी आप उसे recurring payments को भी आप categorize कर सकते हैं. Now automatic reminders for overdue invoice. This is this is also very much important. बिकॉज हम एज अ सीए मैंने देखा है कि हम काम करते रहते हैं और काम में ज़्यादा बिजी रहते हैं और क्लाइंट्स को इन्वॉइस भेज देते हैं और फिर पेमेंट करने के लिए भी हमें उन्हें फॉलो अप करना पड़ता है. सो अब वो फॉलो अप भी मैनुअली हम कर रहे हैं, एक एक मेल भेज रहे हैं कि प्लीज़ पे आर टैक्स ऑडिट फ़ी या प्लीज़ पे आर ITR फ़ी या जो भी वट एवर द थिंग इज़. इंस्टेड देयर शुड बी अ सिस्टम जहाँ पर हम ऑटोमेटिक रिमाइंडर्स चले जाएं कि जब से ही इनवॉइस 7 days ओवर ड्यू हो गया, फर्स्ट मेल शूट हो जाए मेरे सिस्टम से कि योर इनवॉइस इज ओवर ड्यू बाय 7 days. जैसे ही 15 दिन हो जाए तो सेकंड मेल शूट हो जाए, और जैसे ही 30 दिन हो जाए तीसरी मेल चली जाए, जैसे ही नेक्स्ट जाए तो मुझे ही मेल आ जाए कि मैं अब इससे पर्सनली बात करूं या उसके बिजनेस को रोकूं कि भाई अभी आपका काम रोक दिया गया है या जो भी है, वट एवर थिंग इज देयर. सो अगेन यू कैन क्रिएट ऑल दीज रिमाइंडर्स इन ज़ोबुक्स. ज़ोबुक्स में आप ये सारे रिमाइंडर्स क्रिएट कर सकते हैं. सो व्हाट यू कैन डू, इफ़ यू गो टू यहाँ पर सेटिंग्स में आप जाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं आप रिमाइंडर्स. सो यू कैन अगेन क्रिएट कि रिमाइंडर 1 कब देना है, 3 दिन में देना है, रिमाइंडर 2 कब देना है, रिमाइंडर 3 कब देना है, रिमाइंडर 1 का कंटेंट क्या होना चाहिए. मैं इसे मैनुअली लिख सकता हूँ या मैं उसे मैनुअली चेंज करना चाहूँ कि क्या जाए पहले रिमाइंडर में. सो दिस इज़ द थिंग विच यू कैन ऑल्सो ऑटोमेट, और जिससे हम अपनी पेमेंट्स को, अपनी लिक्विडिटी को और ज़्यादा एफिशिएंट कर सकते हैं. जो पेमेंट हमें अगले साल आनी थी वो हम पहले ही जल्दी ले सकते हैं कि भाई 3 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर हमें पेमेंट हमारी रिसीव हो जाए. सो दिस इज़ द थिंग विच यू कैन ऑटोमेट थ्रू ज़ोहो बुक्स. यस, जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं ज़ोहो बुक्स में, यू क्रिएट योर अकाउंट बाय प्रोवाइडिंग योर ईमेल आईडी. सो दैट ईमेल आईडी विल बी यूज्ड, और इफ़ यू वांट टू गिव एनी अदर ईमेल आईडी तो आप दूसरे ईमेल आईडी को, या आप अपने ऑफिस का जो भी ऑफिशियल ईमेल आईडी है उसको यूज़ करके आप भेजना चाहते हैं. जैसे मे बी इन माय ऑफिस वी आर यूजिंग invoices@, जो भी हमारी कंपनी का नाम है, या accounts@, जो भी हमारी कंपनी का नाम है, तो उससे आप ईमेल्स रिमाइंडर्स कर सकते हैं. यस नहीं, वहाँ भी यूज़ हो सकती है और यहाँ पर भी हो सकती है. डायरेक्ट GST फाइलिंग.
नाउ व्हाट इज डायरेक्ट जीएसटी फाइलिंग? जो बुक से आप डायरेक्टली जीएसटी कैसे फाइल कर सकते हैं? व्हाट आई हैव सीन इन ट्रेडिशनल मेथड कैसे काम होता है, या मैंने जो प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया है कि हर महीने की पहली तारीख को मेल जा रही है हमारे ऑफिस से कि प्लीज़ प्रोवाइड योर जीएसटी डेटा फॉर फाइलिंग जीएसटी रिटर्न। फिर वो हमें टेली डेटा ही भेज देता है उठा के क्लाइंट कि ये रहा आपका टेली डेटा, आप इससे निकाल लो और भर लो। फिर कुछ एरर होता है, कुछ प्रॉब्लम होती है, हम वो टेली डेटा उसे वापस दोबारा भेजते हैं, फिर वो उस टेली को ठीक करके फिर वो दोबारा टेली हमें फिर दोबारा देता है। और इसी मतलब इस तरीके से टू एंड फ्रो में ही हमारा काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ज़ोहो बुक्स किस तरीके से हमें हेल्प कर सकता है इसके अंदर? सॉरी, यस डेफिनेटली आई एग्री, आई एक्सेप्ट टेली। आई एम नॉट हेयर कि यस डेफिनेटली, बट आई थिंक उसके लिए आपको कुछ बाय एक्स्ट्रा करना पड़ता है या बाय डिफ़ॉल्ट हमारा टेली होता है? एक्स्ट्रा बाय करना पड़ता है। ज़ोहो में शायद हमें कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता, तो बाय डिफ़ॉल्ट ही ज़ोहो इटसेल्फ क्लाउड बेस है। ज़ोहो हालांकि टेली शुरू में हमारे पास, मुझे याद आता है पहले एक टेली की सीडी आया करती थी कि हम टेली की सीडी लगा के उसे इंस्टॉल किया करते थे। फिर धीरे धीरे सीडी से पेन ड्राइव हो गया, फिर पेन ड्राइव, फिर सीडी के बाद पेन ड्राइव होने के बाद फिर उन्होंने कहा कि हमारी साइट पे जाओ और वो डाउनलोड कर लो, फिर वो डाउनलोड करने वाला सिस्टम आ गया। लेकिन ज़ोहो बाय डिफ़ॉल्ट शुरू से ही, अभी से जैसे ही है, वो बाय डिफ़ॉल्ट ये है कि आप इंटरनेट की वेबसाइट पर जाओ और आप काम करना शुरू करो। यस, आपका कुछ क्वेश्चन था? सोर्स डॉक्यूमेंट से एंट्री करने के बजाय ये लास्ट फीड से एंट्री कर रहा है। उससे होता क्या है कि सोर्स डॉक्यूमेंट की एंट्री अलग से हो जाती है, फिर बैंकिंग ट्रांजैक्शन से एंट्री होती है। और हम ये देखते हैं, जब हम चेक करते हैं इस तरीके के सॉफ्टवेयर के रिपोर्ट, जब हम चेक करते हैं खुद ऑडिट के समय में, डुप्लीकेसी ऑफ एंट्री बहुत होती है और फिर उसको वो रिवर्स करते हैं। और जिस तरीके के डाटा एंट्री बॉयज गर्ल्स वहाँ बैठे हैं, वो बस विदाउट एनी नरेशंस उसको करते हैं, उनको कुछ नहीं पता। दो एंट्री की इसको कैसे साइंटिफिक बनाएंगे आप कि सोर्स डॉक्यूमेंट से एंट्री हो, और जब हम इसको इंपोर्ट करें बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को या कुछ भी, तो फिर वो उसको ऑटोमेटिक चेक करके पहले नॉक ऑफ करें। जब तक वो सिस्टम नहीं होगा, दिस विल नॉट वर्क और ये गलत फाइनेंशियल रिजल्ट देगा अगर इसकी मॉनिटरिंग एंड ऑडिटिंग ठीक से नहीं हुई। से सपोज एक एग्जांपल देता हूँ, मैं पेट्रोल पंप पे गया, मैंने वहाँ से ऑनलाइन पेमेंट करी, वहाँ से मुझे वाउचर मिला, मैंने वाउचर लाके अपने अकाउंटेंट को दिया, उसने उससे एंट्री कर दी, मेरा एक्सपेंस क्रिएट हो गया। अब मेरा क्रेडिट कार्ड आया या मेरा डेबिट कार्ड की स्टेटमेंट आई, वहाँ पर आ गया फ्यूल एचपी पेट्रोल पंप फ्यूल, उसने वहाँ से भी एंट्री कर दी। दोनों एंट्रीज हो गई। जब तक उसकी रिकंसिलिएशन ऑटोमेटिक होकर के लॉकआउट नहीं होगा, ये मेरी फाइनेंशियल्स में डबल रिजल्ट है। तो अगर आप इनके साथ एसोसिएटेड हैं तो काइंडली, जब तक ये ऐसी वाइब्रेशन नहीं आएगी तब तक ये बात नहीं। राइट, थैंक यू फॉर योर इनपुट। मैंने जो ऑब्जर्व करा, आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि क्या है, जो ये बैंक इंपोर्ट करने का ना, ये जस्ट एक फीचर है। मतलब हमें कोई ऐसा ये कह नहीं रहा कि ज़ोहो आप ये बैंक लेकर आप बैंक से एंट्री करना शुरू कर दो। उन्होंने, मतलब मुझे जो फील हुआ, मैं अपनी बस एक्सपीरियंस या कोई भी एक सिस्टम फॉलो करेगा, हाँ, इसको आइदर दिस और दिस, यस डबल सिस्टम फॉलो नहीं कर सकता ना। डबल सिस्टम फॉलो करेगा तो अगर इस सिस्टम को फॉलो करेगा तो अक्रूवल वाली अकाउंटिंग रह जाएगी, तो दिस विल बिकम ए कैश अकाउंटिंग। गॉट इट। और अगर अक्रूवल करेगा और इससे करना पड़ेगा, इसको भी लेगा, तो अदरवाइज अक्रूवल ही करना है। अभी तो टैली इज गिविंग मोर रिपोर्ट्स एंड मोर रिजल्ट देन दिस। तो ये मैं कह रहा हूँ कि जब तक आप इसको सिंक नहीं करेंगे, तब तक ये अकाउंटेंट्स के लिए, लेमैन के लिए वर्क कर सकता है, राइट, बीइंग ए अकाउंटेंट मेरे लिए कैसे वर्क कर पाएगा फ्रूटफुली एंड एक्यूरेटली, ये थोड़ा गॉट इट, गॉट इट। एक क्वेश्चन और इस पे हम इसको पार्टली या हाइब्रिड भी कर सकते हैं। पार्टली या हाइब्रिड इन द सेंस? हाइब्रिड जैसे जो हम चेक इशू कर रहे हैं वो एंट्री मैन्युअल है, और जो कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन आपको उसे मैच करना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर ऐसा हो जाता है, क्योंकि हम एंट्रीज को दो बार रिकॉर्ड कर देते हैं। उधर से वेंडर का बिल भी रिकॉर्ड कर दिया और इधर से पेमेंट भी रिकॉर्ड कर दी, जबकि पेमेंट वेंडर को रिकॉर्ड होनी चाहिए थी। सो मे बी
हमें प्रॉपर ट्रेनिंग की यहाँ पर की ज़रूरत है कि हमें इसको कैसे यूज़ करें, हमें किस किस तरीके से इसको यूज़ करना है, सो दैट वी गेट एक्यूरेट रिजल्ट। जो मुझे फील होता है कि हमें प्रॉपर पता होना चाहिए कि इसको जिस तरह से बनाया गया है उसको किस तरीके से यूज़ करना है, दैट मच अवे, क्योंकि टैली हम यूज़ करते करते एक तरह से वो मेच्योरिटी लेवल पर आ चुका है। आप ये भी हमारे माइंड में ये 25-30 साल पुराने अकाउंटेंट हैं और बिल्कुल अकाउंटिंग प्रिंसिपल से अकाउंटिंग कर रहे हैं। राइट। तो आप कह रहे हो नहीं अपनी अकाउंटिंग को रीलर्न करो। नहीं नहीं, नो सर, मैं ये नहीं 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 सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। We are doing just accounting। राइट 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 आप हमें बता रहे हो नहीं सॉफ्टवेयर पर लगता है 100% चेकिंग करनी पड़ेगी। राइट राइट, ठीक है। राइट राइट नहीं नहीं, मैं यहाँ पर सर ना टैली के बारे में बात कर रहा हूँ, जो भी सर, जो भी राइट राइट सर, Tally is also good, Zoho is also good. I am not here to promote Zoho or something. I am not here to, मैं यहाँ पर कोई प्रमोट करने नहीं आया, मैं तो बस जो मैंने एक्सपीरियंस करा, जिस तरह से मैंने यूज़ करा, जो मुझे रिजल्ट्स मिले, मैं बस उसी को शेयर करने के लिए यहाँ पर आया। Yes, that's fine। और हम भी ये नहीं कह रहे अगर कोई अच्छी चीज आ रही है, नया चीज आ रही है, that should come, but मैं कह रहा हूँ उसको sync करो। Right, right. I'll take your input, maybe if I can convey your message to Zoho people also. Sorry? नो, बैंक जब अपलोड, हम बैंक स्टेटमेंट हम इंपोर्ट करते हैं तो डायरेक्टली वो तो सिर्फ इंपोर्ट करता है। यू कैन नॉट कैटेगराइजेशन, यस यू कैन डू लेटर, लेटर आफ्टर इंपोर्टिंग यू कैन डू। सॉरी, ऑडिट लॉग, यस। So now we can integrate our GST portal with Zoho Books and directly file GSTR 1 and 3B। यहाँ पर हम GSTR 1 जो फाइल कर सकते हैं वो डायरेक्टली इससे कर सकते हैं। So if you can go to this setting, that is GST filing, so you can see GSTR 1, 2 तो applicable नहीं है, 2B you can import and you can make GST payment, you can generate annual return and you can file monthly and quarterly return by integrating your Zoho Books with GST portal. Creating and sending invoices automatically. If you want to send, अगर for example if we are into real estate business और मेरे पास 10 प्रॉपर्टीज़ हैं और मुझे हर महीने की पहली तारीख को अपने आप इनवॉइस क्रिएट करना है, मे बी इफ़ आई एम रनिंग एनी रियल एस्टेट बिजनेस, या मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जिनके साथ मेरी रिटेनरशिप डिस्कस्ड है, अग्रीड है पहले से ही कि मुझे हर महीने की 5 को उनको अपना 50,000 का बिल भेज देना है, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट मैनुअली यू कैन जनरेट और यू कैन क्रिएट, गिव इंस्ट्रक्शन टू Zoho कि आप उसे ऑटोमेटिक क्रिएट कर दें और सेंड कर दें, सो दैट यू कैन डू, you can create recurring invoices in Zoho Books. So you can save your routine task and you can focus more towards strategic decision, and for clients they can have their more financial controls, they will not get surprises, if they will get definitely पहले accurate accounting होने का ज़रूरी है, अगर accurate accounting इसमें होती है so then it will be helpful for us as a professional and definitely it will be helpful for our clients as well because they can access all their data at one place. Common challenges when we try to implement Zoho Books या Zoho को हम जब implement करते हैं तो what is common challenges, that is resistance to change because नहीं चेंज हो पाता, इतना अकाउंटेंट भी मार्केट में इतने अवेलेबल नहीं है Zoho Books के अभी, सो व्हाट आई हैव सीन, और पीपल ऑल्सो रेजिस्ट कि हम ट्रेडिशनल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से काफ़ी हम हैप्पी हैं और कुछ हमें ऐसा कोई प्रॉब्लम भी नहीं आ रहा, सो वी फील रेजिस्टेंस टू चेंज. एंड देन डेटा माइग्रेशन इशू, ये कुछ कॉमन चैलेंजेस है. लर्निंग कर्व फॉर न्यू यूज़र, इफ़ यू आर न्यू यूज़र देन यू हैव टू लर्न ऑल दोज थिंग्स, यू हैव टू स्पेंड सम टाइम, देन ओनली यू कैन मैनेज. Solution, gradual implementation, training session, consult to Zoho and their partners. What is future of accounting? जो हम future of accounting के बारे में देखते हैं तो what I can see, जो मैं भी देख रहा था कि
what people are doing there in US, वो क्या कर रहे हैं, वो किस तरीके से अब कर रहे हैं. तो they are also doing कि बैंक स्टेटमेंट को रीड करके ट्रांजेक्शन्स ऑटोमेटिकली कैटेगराइज हो जाएं, अपने आप रिकॉर्ड हो जाएं, या उनको अगर वेंडर का बिल आ रहा है, for example you are getting lot of vendors bill, so now instead of recording each and every bill, if you just click one photo, that bill will automatically be recorded in your software. And I know ये Tally में भी है, ZoBooks में भी है, I think सभी चीज़ों में है कि just हम बिल की फ़ोटो खींचेंगे और वो अपने आप हमारे पास रिकॉर्ड हो जाएगा. That we can do. I think Tally के साथ कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर ऐड करके, हाँ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर ऐड करके we can do that also in Tally also. और फर्दर आई हैव ऑल्सो एक्सप्लोर्ड मोर ऑप्शन. हम अगर आपने शायद Zapier का नाम सुना हो या Pabbly का नाम सुना हो, व्हाट वी कैन डू थ्रू Zapier और Pabbly, कि अगर कोई ट्रांजेक्शन मेरे फॉर एग्जांपल राइट नाउ वी आर ऑल डूइंग एवरीथिंग ऑनलाइन. फॉर एग्जांपल इफ आई हैव क्रिएटेड माय वेबसाइट और मैंने उस वेबसाइट पर क्रिएट करके अपने प्रोडक्ट्स को, इफ द प्रॉब्लम व्हाट वी फेस इन आवर CA प्रैक्टिस, आई नो यहाँ पर काफ़ी सीनियर्स मेंबर हैं, काफ़ी सारे लोग हैं वो ज़्यादा एक्सपीरियंसड हैं, काफ़ी उनको पता है. बट व्हाट आई फील कि एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक सर्टेन लिमिट के बाद हम क्लाइंट को मैनेज, जैसे मेरे पास 10 क्लाइंट हुए, फिर 20 हुए, फिर 30 हुए, फिर 50 हुए, आइदर वी हैव टू एक्सपेंड आवर टीम अकॉर्डिंगली, मुझे अपनी टीम को उस तरीके से एक्सपैंड करना पड़ेगा, या फिर ऑन द अदर साइड मेरे पास लिमिटेड प्रोडक्ट्स हों या मैं उनको स्केल करूं. बट दिस इज़ ऑल अबाउट प्रोफेशनल फर्म. प्रोफेशनल फर्म में जैसे जैसे हमारे पास क्लाइंट्स बढ़ते हैं, हमें वैसे वैसे अपने एम्प्लॉयज़ को या लोगों को और इंक्रीज़ करना पड़ता है. सो दीज टूल्स विल बी हेल्पफुल. ऐसे ही Zoho CRM भी है. अगर फॉर एग्जांपल Zoho CRM के बारे में भी मैंने देखा कि Zoho CRM में हम क्या कर सकते हैं, क्लाइंट्स की पूरी जर्नी बना सकते हैं. आज मुझे कोई इंक्वायरी आती है कि मुझे ये वर्क कराना है, मेरे पास कोई सिस्टम नहीं है कि मैं उसे कहाँ रिकॉर्ड करूँ. मैं उसे एक्सेल में नोट करता हूँ कि दिस पर्सन हैज़ आस्क्ड मी फॉर दिस सर्विस. इफ़ आई एम डीलिंग एट बिग लेवल, अगर मैं एक बड़े लेवल पर काम कर रहा हूँ, मेरे पास रोज 5-10 इंक्वायरीज आ रही हैं, कुछ चीज़ें आ रही हैं, हाउ टू मैनेज ऑल दोज थिंग्स विद अ सॉफ्टवेयर, हम उसको कैसे मैनेज करें. सो दोज थिंग्स कैन बी मैनेज थ्रू यूजिंग, ये एक सिर्फ टूल्स हैं, हालांकि हम इनको एज अ टूल ही यूज़ करेंगे और ये टूल हमें हेल्प करते हैं हमारी इन सब चीज़ों में. तो मैं एक बार Zoho बुक्स के बारे में और भी कुछ गो थ्रू आपको कराना चाहूँगा. So this is home tab, this is item tab where you can create item, banking, you can integrate your bank account, sale, you can create all your customers here, और best part आप यहाँ पर customer portal भी create कर सकते हैं. What I have seen customer portal का मतलब मैं एक इंटरनेट पर कस्टमर को एक्सेस दे रहा हूँ ताकि वो देख सके कि मैंने उसके उसने कौन कौन सी सर्विसेज हमसे ली, उसने किन किन सर्विसेज की पेमेंट कर दी या नहीं कर दी. तो आई कैन क्रिएट कस्टमर पोर्टल. सिमिलरली आई कैन ऑल्सो क्रिएट माई वेंडर पोर्टल. तो इंस्टेड ऑफ डूइंग रिकन्सिलेशन, क्योंकि मान लो मेरे पास एक वेंडर्स के साथ 100 बिल्स हैं और 100 बिल्स में से मैंने 80 बिल्स की पेमेंट कर दी है, अब मुझे एक क्लर्क अपॉइंट करना पड़ रहा है, वो रिकन्साइल कर रहा है कि ये पेमेंट आई, ये नहीं आई, इसका ये बिल आया, ये नहीं आया. तो अगर मैं उसको एक्सेस ही दे दूं वेंडर को कि आप ये देख लीजिए, ये आपके बिल्स थे और ये हमारी पेमेंट्स थी, कुछ मिसमैच है तो हमें बता दीजिए. सो दैट कैन ऑल्सो सिंप्लीफाई आवर वर्क. सो दिस इज vendor, this is expenses, you can record expenses, recurring bills you can create, time tracking, e-way bill you can create, GST filing you can do. टाइम ट्रैकिंग फॉर एग्जांपल आप प्रोजेक्ट वाइज अकाउंटिंग करना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल यू आर वेब डेवलपर, आप कोई वेबसाइट डेवलपर हैं और आपको मैंने फॉर एग्जांपल आई हैव गिवन यू, आई एम पेइंग यू 2000 पर आवर फॉर डेवलपिंग माय वेबसाइट. सो हाउ टू ट्रैक दोज एक्सपेंसेस, आपने कितने घंटे काम किया, कितने घंटे उस वेबसाइट के, मैंने लोगो बनाने का काम आपको दिया फॉर एग्जांपल, तो आप लोगो बनाने में आपको वी हैव डिस्कस दैट आई विल बी पेइंग यू 1000 रुपीज़ पर आवर. तो अब वो कितना टाइम ट्रैकिंग हम यहाँ पर कर सकते हैं, प्रोजेक्ट वाइज अकाउंटिंग कर सकते हैं. सो दिस ऑल कैन बी पॉसिबल. अपने वर्क की कॉस्टिंग, यस डेफिनेटली डेफिनेटली आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं कि इस टास्क के अंदर, इस प्रोजेक्ट के अंदर मेरे 3 लोग लगे, ये मेरा क्वालिफाइड सी है जिसकी 5000 पर आवर कॉस्ट है, ये मेरा सेमी क्वालिफाइड सी है, इसने अपने 2 घंटे दिए, ये मेरा इंटर्न है, इसने मेरे इतने घंटे दिए, तो आप वो निकाल सकते हैं. उनको रिपोर्टिंग भरनी पड़ेगी कि कितने टाइम मैंने यहाँ दिया इस काम पर, यहाँ पर वो सारा क्रिएट करना पड़ेगा.
that you need to create. Yes, yes. Then you can do, this is accountant module. Here you can create manual journal entries, currency adjustment, chart of accounts, जिसको हम ledgers बोलते हैं टैली के अंदर. Budgets you can create and budgets versus actual you can do. Transaction locking, कि ये पीरियड मेरा क्लोज हो गया, ऑडिट हो गया, तो आई हैव टू लॉक दैट पीरियड, या फिर उस पीरियड की मुझे ट्रांजेक्शन्स को लॉक करना है या किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल को मुझे लॉक करना है. रिपोर्ट्स यू कैन जनरेट ऑल योर रिपोर्ट्स like balance sheet, P&L, cash flow, business performance, sales by customer, sales by item, inventory, FIFO, customer balance, aging summary, receivable summary, vendor AR, AP summary. This you can generate TDS summary, TDS receivable, these GSTR 3B summary. This you can all generate through. Yes. यहाँ पर yes, you can generate schedule 3 balance sheet, and you can also map ledgers also according to your requirement. So this can be possible. Reconciliation you have to do it manually. यहाँ पर जो आपकी बुक्स में जो TDS है वो यहाँ पर दिखाता है. Definitely 26 AS के साथ फिर manually reconcile करना पड़ता है. Yes, consolidation if you are creating, यहाँ पर there is a option to create branches. You have to add GST number of all the branches. यहाँ पर आपको उनको enable करना पड़ता है. Then you can generate consolidated balance sheet and P&L. Further ऐसा भी हो सकता है if you are looking for more advanced level कि मेरी दोनों कंपनियां अलग अलग हैं. For example हिंदुस्तान यूनिलीवर इंडिया, हिंदुस्तान पाकिस्तान यूनिलीवर और अलग अलग हैं. अब वो तो सब अलग अलग हैं, तो मैं एक ऐप आता है इनका जोहो एनालिटिक्स, उनसे पूरा ग्रुप ओवरव्यू भी ले सकता हूँ कि मुझे, लेकिन वो सब करने के लिए एक एडवांस चीज़ें चाहिए. मतलब आप ग्रुप ओवरव्यू ले सकते हो और वो सब चीज़ें क्रिएट कर सकते हो. मे बी तरुण विल डिस्कस अबाउट जोहो एनालिटिक्स इन सेकेंड सेशन. यस. यस. ई कॉमर्स के लिए जैसे आपने शॉपिफाई का नाम सुना होगा, ऐसे ही जोहो कॉमर्स करके है. देयर यू कैन बिल्ड योर कंप्लीट ऑनलाइन स्टोर. आप एक पूरा ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं. आप एक वेबसाइट बनाइए, फैशन वेबसाइट है या जो भी वेबसाइट है आपकी, यहाँ पर वो दिए गए हैं. आप अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करिए और फिर उसके बाद उसको जो बुक्स के साथ इंटीग्रेट कर दीजिए. तो जो भी आपकी वेबसाइट में ऑर्डर्स आ रहे हैं, सेल्स ऑर्डर आ रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली जो बुक्स के अंदर आ रहे हैं और पेमेंट्स रिकॉर्ड हो रही हैं. तो दैट इज़ जोहो कॉमर्स, जहाँ पर आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं और ये सब चीज़ें वहाँ पर पॉसिबल हैं. अमेज़ॉन से जोहो इन्वेंट्री का इंटीग्रेशन है. जोहो इन्वेंट्री को आप जब यहाँ अमेज़ॉन लिखते हैं गूगल पे, जोहो इन्वेंट्री अमेज़ॉन इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर अमेज़ॉन सेलर अकाउंट का इंटीग्रेशन है. यहाँ पर ये पूरा बताया गया है कि कैसे आप अमेज़ॉन को जोहो इन्वेंट्री के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं. बजटिंग के लिए यहाँ पर आपको बजट्स बनाने पड़ते हैं. यू हैव टू क्रिएट बजट्स. इफ़ यू विल कम हेयर इन अकाउंटेंट मॉड्यूल, देन बजट्स, देन यू नीड टू क्रिएट न्यू बजट एंड यू हैव टू गिव बजट का नेम. और ये बजट आपका मंथली है, ईयरली है, और क्या क्या उसमें आप इनकम इंक्लूड करना चाहते हो, क्या फिर क्रिएट होगा बजट. फिर बजट रिपोर्ट्स में जाके यू कैन जनरेट रिपोर्ट्स ऑल्सो. Yes, you can also import बैंक स्टेटमेंट के साथ साथ क्रेडिट कार्ड, बट दैट यू हैव टू डू इट मैनुअली. यहाँ पर ऑप्शन है add manually. Once you click on add manually, you can see both the option bank as well as credit card. So once you add your credit card, for example, I have ICICI Bank credit card. ऑटो फीड नहीं होगा. यस 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 यस. क्रेडिट कार्ड के केस में नहीं. क्रेडिट कार्ड के केस में यू हैव टू, देयर इज अ सेट टेम्पलेट विच यू हैव टू यूज. ऐसा भी हो जाता है इसमें कि आपकी ईमेल पर हर महीने बैंक की स्टेटमेंट आ रही है और आपने वो ईमेल फॉरवर्ड कर दी जोहो के अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी ईमेल से शिफ्ट होकर जोहो में अपने आप आ जाएगी. यहाँ पर एक आता है ऑटो इंपोर्ट स्टेटमेंट का, एक इंपोर्ट स्टेटमेंट. यहाँ पर एक ऑप्शन आता है कि आप जो ईमेल है उसे फॉरवर्ड कर रहे हैं जोहो को. जैसी वो ईमेल आपकी मेल पर आती है वो आप जोहो को फॉरवर्ड कर दें. यस
यस यस यस फॉर बैंक बट हर किसी में नहीं होता, कई बार कुछ एरर भी आ जाते हैं, वो फिर उसको फिक्स करना पड़ता है। क्रेडिट कार्ड के केस में आई डोंट थिंक ये होता है। फॉरेक्स के केस में ट्रांजेक्शन यहाँ पर मल्टी करेंसी का ऑप्शन होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कोई कस्टमर अपना क्रिएट करता हूँ और मैं उसे नाम देता हूँ कि वो बाहर का क्लाइंट है। फॉर एग्जांपल आई गिव कस्टमर नेम एज पीटर, और मैंने यहाँ कस्टमर को कर दिया ओवरसीज़, और ये ट्रांजेक्शन अपने आप यहाँ पर इसको जब मैं सेव करता हूँ तो जब मैं इस पीटर को इन्वॉइस क्रिएट करूँगा तो दिस विल बी आस्किंग कि वो इन्वॉइस करेंसी को देना पड़ता है। जस्ट अ सेकेंड। डिफॉल्ट करेंसी फॉर एग्जांपल यूएसडी डॉलर्स। नाउ व्हेन आई क्रिएट न्यू इनवॉइस, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल आई एम डूइंग बुक कीपिंग सर्विस, $1000 आई एम चार्जिंग, तो $1000। अब यहाँ पर यू कैन सी ये ऊपर यहाँ पर करेंसी आ रहा है अपने आप 84.8176 जो आज की डेट का है, और यहाँ पर आप इसको मॉडिफाई करके एक्सचेंज रेट को मॉडिफाई कर सकते हैं। ये इनका सिस्टम जो भी एक साइट है उसके साथ कनेक्टेड है, तो वहाँ से आप इसको कनेक्ट करके निकाल सकते हैं। मैं बता यस 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 मैं आपको बता देता हूँ। रिस्पेक्टिव ऑटोमेटिक एक्सचेंज रेट जो भी है वहाँ से ये इंपोर्ट करता है, तो आप उसको वहाँ से भी ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप मैनुअली भी फिक्स कर सकते हैं। अगर आपने पेमेंट रिसीव करते हुए सही एंट्री सही एक्सचेंज रेट लिया होगा तो डेफिनेटली आ जाएगा। सॉरी। सो दिस इज अकाउंटेंट मॉड्यूल रिपोर्ट्स डॉक्यूमेंट्स। अब मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स भी रख सकता हूँ अपने जितने भी हैं। फॉर एग्जांपल आई एम कीपिंग माय ऑल बैंक स्टेटमेंट, जीएसटी चालान, टीडीएस चालान मैं जो बुक्स में ही रख सकता हूँ। तो इफ़ यू वांट यू कैन डू दैट आल्सो। फर्दर वेब टैब, व्हाट इज़ वेब टैब? नहीं, वो आपको ये आपके रिकॉर्ड कीपिंग के लिए, मतलब यहाँ पर जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे जितने भी अकाउंटेंट्स हैं सब आपस में मेरे से बार बार ना पूछें कि टीडीएस चालान कहाँ है या जीएसटी के चालान कहाँ हैं, तो वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए। सेंड करने का ऑप्शन आई डोंट थिंक नहीं है, बट आई नीड टू चेक, मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर का ऑडिट या इसकी बुक्स में जो अकाउंट्स बने हैं उसका ऑडिट? सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर का ऑडिट, सॉफ्टवेयर इज सर जो मैंने जहाँ तक देखा है ये जीडीपीआर कंप्लाइंट यूएस के अंदर या जितनी भी कंट्रीज़ हैं यूरोपियन कंट्रीज़, वहाँ पर जोहो मैं लिख देता हूँ जीडीपीआर कंप्लायंस। ये सो व्हाट इज़ जीडीपीआर कंप्लायंस? जैसे इंडिया में तो हमारे को इंडिया के लॉज को फॉलो करना पड़ता है, वहाँ पर जीडीपीआर कंप्लायंस होता है, डेटा प्रोटेक्शन लॉ। तो वहाँ पर ये सब उन चीज़ों को ये कंप्लाई करते हैं, अबाउट पर्सनल डेटा, हाउ दिस जीडीपीआर इज़ प्रिपेयर्ड, ये सब चीज़ें वहाँ पर ही उसको कंप्लाई करते हैं। तो डेफिनेटली जोहो का ऑडिट होता है। जोहो इस 7,000 करोड़ का मेरे ख्याल से इनका रेवेन्यू है, तो जोहो कंपनी का ऑडिट होता है। तो जोहो का सॉफ्टवेयर भी उन कंप्लायंसेस को फॉलो करता होगा। अगर हम अपनी इंडिया में काम करना चाहते हैं, यूएस के अंदर अगर सॉफ्टवेयर है तो डेफिनेटली यूएस के अंदर एक दिन भी काम करना ईजी नहीं है अगर आप कंप्लायंस को फॉलो नहीं करते। तो डेफिनेटली दिस इज़ कंप्लायंट सॉफ्टवेयर। इन इंडिया दिस इज़ जीएसटी कंप्लायंट, टीडीएस कंप्लायंट, इनकम टैक्स कंप्लायंस, ये हमें फॉलो करने पड़ते हैं। ऑन दैट रिपोर्ट वी कैन डेफिनेटली जनरेट। इसमें एक ही लाइसेंस मिलता है आपको, चाहे वो फिर आप अपने लिए करें या अपने क्लाइंट को दे दें। नहीं, मल्टीपल कंपनीज आप क्रिएट कर सकते हो। जोहो बुक्स फ्री है अगर आपका कोई क्लाइंट की टर्नओवर 25 लाख रुपए तक है, तो 25 लाख तक है अगर आपका कोई क्लाइंट, तो उसकी टर्नओवर फ्री है। सो
They have multiple plans. Standard, professional, premium. तो standard में you get 749 per month up to 3 user, then 1499, then premium, then enterprise free plan. अगर कोई सोलोप्रेन्योर है, सिंपल सिंगल बिजनेस ओनर है, टर्नओवर लिमिटेड है, अदरवाइज यू कैन कंपेयर all the plans over here. Yes, I think we have time limitation. बार बार I'm getting notification. Yes. अभी तो 5 years के लिए फ्री है, फिर से CA इंस्टीट्यूट MOU साइन कर लेता है अपने जो के साथ, तो अगेन विल बी फ्री. 5 years, 5 years. So 5 apps. Yes, 3 years. I'm sorry. Yes, 3 years. Sorry. So thank you very much. I hope this session will be useful for you. आपको काफ़ी कुछ समझने को मिला होगा. If you further would like to connect with me, then I am just sharing my screen, my LinkedIn. So you can just scan this QR code and we can get connected on LinkedIn also. आप 1099 1049 जो रिटर्न्स होती हैं वो आप इससे, रिटर्न्स तो नहीं प्रिपेयर होती बट हाँ उसके लिए इनपुट्स मिल जाते हैं. थैंक यू वेरी मच. सॉरी. यस सर, यू कैन माइग्रेट टैली डेटा, माइग्रेट कर सकते हैं बट ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिक टैली का डेटा यहाँ चला जाएगा. मैनुअल एफर्ट्स विल बी रिक्वायर्ड. Yes, Zoho will support you. Otherwise, there are Zoho consulting partner. You can take their services. Thank you, sir, for your valuable insights on how to automate accounting using Zoho Books. These inputs will definitely help us in saving our time in routine tasks. Your expertise and contributions in the field are truly inspiring. We are grateful for your time and for sharing your knowledge with us today. Let's give a huge round of applause for Sir. I now request CA Shweta Pathak ma'am, former Vice Chairperson of NIRC, to present a memento to CA Kunal Kumar sir as a token of our gratitude. We will resume promptly after our networking lunch. Enjoy your meal, everyone.